Hello guys. So pink moon, super moon, lot of names are given to it. हर धर्म में इसका एक नाम है. Basically it's the full moon and this is what I'm going to talk about today. बहुत ही बड़ा चेंज पिंक मून इसको क्यों बोलते हैं और ये इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्यों होता है. वाई मून is so much connected to our lives and also how this is going to impact your sun sign. I will mind you again that I'm talking about sun sign and not moon signs. If you really want to know the difference between moon sign, sun sign, your rising signs, do let me know under the comments. And let's start this video. If you are already here, then I'm sure you've come through my Instagram because that's where I posted that I'm going to do a series of this particular video. So hi, my name is Vandana. और अगर आप मेरे Instagram से आए हैं तो already आप मुझे जानते हैं और या तो आप मेरे दोस्त हैं या आप मेरे को मुझे मेरे किसी social network से connected हैं. And if you are just here because of pink moon and आप मेरे Instagram से नहीं connected हैं, then hello. So today I'm going to talk about what is pink moon giving to you as your sun sign for the next week. क्या क्या changes देखने को मिलेंगे. So the super moon is affecting majorly Libra. So when I talk about it's affecting Libra, it means that it is going to be a mainstream in Libra. So it is going to do a lot of effects on Libra. I'm going to be ना time waste किए start करते हैं. So what is the day and the time the pink moon is going to happen? Pink moon is going to start from 5th of April and it is going to be on its most illuminating state on 6th of April at 12:30 a.m. But it is going to be seen in India, Australia, Paris, and a lot of countries. But I don't know, in India it's going to be 10:30 a.m. So according to Indian weather, I don't think so कि जो pink moon है आप देख पाएंगे ऐसे visibly. But yes, a lot of parts in Europe you will be able to see a literal pink moon. So this is it. This is what it is about. When we talk about moon and we talk about the changes that happen in moon, उसका साइज जब इंक्रीज डिक्रीज होता है, सो इतना इफेक्ट क्यों है एस्ट्रोलॉजिकली, क्यों माना जाता है कि दैट इफेक्ट्स अस. So first of all, moon is related to water, water is related to emotion, emotion is related to relations. So I feel that हमारी लाइफ में इमोशन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. No matter what you eat, what you earn, what you do, it's always what you feel. Like आप कैसा feel कर रहे हो. That's why moon is such an important planet in our sun sign. And बहुत सारे religions में, if you talk about Christianity, then it's a Paschal moon. If you talk about Buddhism, then there's also a festival, I might not know the name, but they celebrate it really nicely. And if you talk about us, Hinduism, we celebrate Hanuman Jayanti, बहुत बड़ा दिन, Hanuman ka din. And also I'm going to talk about Hanuman Jayanti in my next video, so don't miss it. Pink moon is also called as super moon. And why super moon? Because on this day it is the closest to the earth, and if you talk about the size, it's the biggest if you compare to the other days, which is like a 14% increase. If you talk about the illumination, वो भी 30% बढ़ जाता है if you compare it to the other days. So this is one reason you call it super moon. Let's talk about Aries. मैं सन साइन की बात कर रही हूँ. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड आई एम सेइंग दैट हाउ इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट यू. बेसिकली आपको क्या इमोशंस फील करने पड़ेंगे, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. सो एरीज के लिए ये टाइम बहुत ही रिलेशनशिप से रिलेटेड है. एंड यू माइट फाइंड न्यू लव, यू माइट ऑल्सो एंड अप द करंट रिलेशनशिप यू आर इन. आपको इमोशनली ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा ये पिंक मून. बेसिकली ऐसा भी हो सकता है अगर आप सिंगल हैं, सो गेट रेडी फॉर अ प्रपोजल और somebody entering in your life. And if you're dealing with a situationship,
or if you're dealing with anything that's uncertain, then यहाँ पे बहुत extreme changes होने वाले हैं. Either you will come to a conclusion कि अब इसी के साथ रहना है, या फिर आप मूव ऑन हो जाएंगे इस पूरे के पूरे सिनेरियो से. सो ऑल द बेस्ट एरीज, नॉट टू बैड नॉट टू गुड, बट इमोशनली थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, but I'm sure you're going to handle it. Let's talk about Taurus. Taurus के लिए it's going to be a roller coaster ride. अब यहाँ पे जब मैं roller coaster ride बात कर रही हूँ तो I'm not saying on a personal front, but I'm talking about a professional front. यहाँ पे आपको बहुत सारे emotions आएंगे, बहुत सारे thoughts आएंगे, resign कर दूँ, नई job ले लूँ, और लेकिन but the good news is that this is going to be a really nice change for you. अगर आप already resign कर चुके हैं, मेरे हिसाब से आप अब तक resign कर चुके हैं और आपको नई job मिल चुकी है, if you are unemployed, best time to work on your skills. सबसे अच्छा टाइम है कुछ भी नया स्टार्ट करना है, नया कोर्स करना है, नई जगह पे एडमिशन लेना है, किसी नई क्रिएटिविटी पे काम करना चाहते हो, और इवन क्रिएटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल फ्रंट. आई विल से अगेन, टॉरस अच्छा चेंज है, लेकिन इमोशन वाइज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे कि यार ये जॉब सही भी है कि नहीं, ये चीज़ सही भी है या नहीं, बट बाय द एंड ऑफ द वीक यू विल नो द करेक्ट आंसर. ट्रस्ट मी ऑन दैट. Geminis, क्या चल रहा है? आर यू लिटरली वेटिंग फॉर समवन टू कम इन टू योर लाइफ? अगर सिंगल हो तो प्लीज़ 2023 इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू पुट योर सेल्फ आउट देयर. अगर स्टार्ट करना चाहते हो लव लाइफ, लोगों से मिलना जुलना, या फिर यू आर प्लानिंग फॉर अरेंज मैरिज, यू कैन स्टार्ट दैट. वट एवर यू प्लानिंग फॉर, दिस टाइम इज गोइंग टू ब्रिंग लव टू यू. ऑल्सो रोमांटिकली तो बहुत अच्छा ही है ये टाइम आपके लिए, बट एक और चीज़ है जो आप स्टार्ट करेंगे शायद, दैट्स ऑन समथिंग रिलेटेड टू योर फिजिकल एक्टिविटीज़. हो सकता है आपको अचानक से मोटिवेशन आ जाए कि यार फिट होना है, जिम ज्वाइन करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं. बट अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, दिस इज़ द राइट टाइम. कोई भी चीज़ गलत नहीं होने वाली है, या आपको कोई भी चीज़ का ऐसा नहीं होगा कि बेनिफिट ना मिले. सो जस्ट गो फॉर इट. प्यार और हेल्थ और ये सारी चीज़ें आने वाली है. ऑल द बेस्ट जेमिनाइज. सो नेक्स्ट इज माई लवली कैंसर्स. टेंशन मत लो, आई नो यू हैव बीन थिंकिंग अ लॉट. बहुत सारी बातें याद आ रही होंगी, चाइल्डहुड का ट्रॉमा याद हो रहा होगा, किसने मेरे साथ कहाँ कब कैसे गलत किया, वो सब कुछ याद आ रहा होगा, और इस वजह से आप इमोशनली बहुत ड्रेन फील कर रहे हो, और इस वीक आप ये इमोशंस बहुत ज़्यादा फील करोगे. प्लीज़ 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 डोंट फील दैट. छोटा सा समय है, क्योंकि इमोशनल राइड्स हैं आपकी, मून आपको बहुत अच्छे से इफेक्ट कर रहा है. दैट इज़ वन रीज़न यू आर गेटिंग ऑल द फ्लड्स ऑफ द थॉट्स दैट पास्ट में जो भी जिसने भी आपको इमोशनली ट्रॉमेटाइज किया, आपको उनकी याद आएगी. शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील कर सकते हो इस टाइम पे, बट दिस टाइम विल गो ऑन, लाइक मतलब चला जाएगा ये टाइम, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट. सेकेंड, हो सकता है कि आपको रीलोकेशन करनी पड़े, शायद आप घर बदलें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ चेंजेस हो सकते हैं. घर खरीदने वाले हो तो शायद उस घर की डील पक्की हो सकती है. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू रेंट, टू चेंज योर हाउस, दैट कैन हैपन. सो ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा इमोशनली इधर उधर है, बट यू विल गेट थ्रू इट, डोंट वरी. Hi guys, so you might see me in a different frame, in a different dress in this video, because I literally missed out recording Leo for the pink moon, and here I am recording for them. So my Leos out there, अचानक से बहुत सारा रश आ रहा है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, क्रिएटिविटी से लेके स्किल्स से लेके कि यार ये स्टार्ट कर दूँ, वो स्टार्ट कर दूँ. Just it's the best time. I would say not even good, it's the best time to start if anything related to creativity you're planning. अगर किसी तरह की ऐसी जॉब में है जहाँ पे आपकी राइटिंग और कम्युनिकेशन आपका बेसिक आपका इट्स द मेन पार्ट ऑफ योर जॉब, देन ऑब्वियसली गोइंग टू डू वंडर्स. उसमें थोड़ा सा काम करो. अगर राइटिंग जॉब में हो या ऐसी कोई भी जॉब जो आपको जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की वजह से आपको वो जॉब मिली है, या राइटिंग स्किल्स की वजह से वो जॉब मिली है, या फिर PR स्किल्स की वजह से वो जॉब मिली है, तो आई वुड से दैट वर्क ऑन दिस मोर एंड enhance your skills more. And to the other Leos who are not working on this platform,
राइटिंग कम्युनिकेशन वगैरह वाली जॉब में नहीं है, उनको इस टाइम पे बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे क्रिएटिविटी से लेके। उन्हें लग रहा होगा यार क्रिएटिव हुआ जाए, कुछ ऐसा किया जाए जो कि शायद पेंटिंग, शायद ड्राइंग, शायद टू स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, मे बी अ डांस क्लास, मे बी डांस ऑन देयर ओन, मे बी अ चैनल और व्हाटएवर। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इट। एंड ऐसे बहुत सारे थॉट्स आएंगे आपको नेक्स्ट 2 वीक्स, रेडी रहिए उनके लिए। सो नेक्स्ट इज वर्गो। हाँ भाई, क्या चल रहा है, पैसा ही पैसा, हाइक, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, शायद जॉब चेंज करेंगे तो वहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट, यानी कि पैसों से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। पर अगर मैं बात करूँ मून के थ्रू क्या इमोशन होगा, इमोशन ये होगा यहाँ खर्च कर दूँ, वहाँ खर्च कर दूँ, सोफ़ा ले लूँ, नया फ़ोन ले लूँ, सब कुछ कर दूँ। बट ऐसा नहीं करना है, रिलैक्स, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। बहुत सारे पैसे आ गए हैं मुझे पता है, लेकिन आपको खर्च नहीं करना है, इतनी बुरी तरीके से खर्च नहीं करना, अपनी नेसेसिटीज़ पे खर्च कीजिए। बिकॉज ये टाइम थोड़ा सा वेल्थ को संभालने का है। अगर आप भावनाओं में बह गए तो शायद हो सकता है आप अपने सारे पैसे खर्च कर दें। सो ऐसा नहीं करना है। Also, if you are looking, if you're still looking for a better opportunity, this month is gonna bring you that. So hope for the best and पैसा संभाल के रखो। लिब्रा, इसका सबसे ज्यादा इंतजार था बिकॉज द पिंक मून इज एक्चुअली सिटिंग ऑन लिब्रा दिस टाइम एंड इट इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस फॉर यू। लिब्रा, दिस इज योर टाइम। जिस चीज़ पे काम करो, जिस चीज़ का वेट करो, जो चीज़ अचीव करना चाहते हो, लग जाओ उस काम पे, टेक द लीड, कर दो, हो जाएगा। टाइम इज फेवरिंग यू, मून इज फेवरिंग यू, ज़्यादा टेंशन मत लो। दिस इज़ योर टाइम। छोटा मोटा जो भी प्रोजेक्ट है, ये मत सोचो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ या बहुत बड़े आइडिया की बात कर रही हूँ। छोटा आइडिया है, बड़ा आइडिया है, जैसा भी है, जो भी मन में सोच रहे हो, जब से 2023 शुरू हुआ है कि ये स्टार्ट करना है, लेट। स्कॉर्पियन इज माई पर्सनल फेवरेट। हाँ जी, क्या सोच रहे हो कि थोड़ा सा रुक के ब्रेक ले लिया जाए, छुट्टी पे जाया जाए? वेल, दिस इज द राइट टाइम। ऐसे बहुत सारे इमोशंस आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि यू शुड स्लो डाउन, यू शुड रिलैक्स अ बिट, यू नीड अ ब्रेक फ्रॉम द होल रश ऑफ 2022 एंड 2023। लास्ट के 6-7 मंथ्स जैसे भी आपके गए हैं, आपको लग रहा होगा लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक। सो टेक अ ब्रेक, गो फॉर हॉलीडे, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ टाइम जहाँ पे सच में आपको अंदर से लगेगा कि यार स्लो करो, अब ना थोड़ा स्लो करो एंड रिलैक्स फॉर अ बिट। So this is what you're going to feel. Don't worry, this will go away in few days and you will be back to your treadmill again and you'll be rushing and running for the things again. And yeah, enjoy your time, enjoy your break. Jaldi jaldi book karo apni tickets. Bye. Sagittarius is the next one. So your mind and heart will say that काम से थोड़ा सा ध्यान हटाया जाए और दोस्तों से मिला जाए, पुरानी दोस्ती, दोस्तों के साथ पार्टी की जाए। सो दिस इज टाइम फॉर यू टू सेलिब्रेट एंड दिमाग और आंख दोनों खुली रखें, क्योंकि रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है और उसके साथ साथ पुराने दोस्तों से मिलने का प्लान बन सकता है। बहुत ही हैप्पी गो लकी नेक्स्ट 2 वीक्स होने वाले हैं। काम में दिमाग कम लगेगा और पार्टी प्लानिंग में ज़्यादा लगेगा, जो कि अच्छी बात है। यू शुड ऑलवेज डू दैट एट वंस। ऑल राइट, एंड इट्स नॉट गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस, बट हाँ, दिल हल्का लगेगा और जितने भी इमोशंस का लोड बहुत ज़्यादा फील होता था, ये कम हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर टाइम, दिस इज गोइंग टू बी योर इमोशंस, सो enjoy your parties. केप्रिकॉन। सो केप्रिकॉन को मेरा एक छोटा सा सजेशन है, बिकॉज ये पिंक मून आपके लिए प्रोफेशनली थोड़ा सा गाइडेंस की तरह आ रहा है। मेक श्योर दैट यू लुक एट द लार्जर पिक्चर एंड सी वॉट लाइज अहेड फॉर यू एंड इवेल्युएट करें जो अब तक किया, आगे क्या करना चाहिए, फ्यूचर प्लान बनाइए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे काम कीजिए, क्या बेस्ट हो सकता है इस पे थॉट देना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अब ज़रूरी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कोई नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि ये टाइम आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में व्हाट्स राइट फॉर यू, व्हाट्स रॉन्ग फॉर यू एंड व्हाट लाइज अहेड एंड व्हाट हैव यू डन सो फार, व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू हैव डन। सो उस हिसाब से ये टाइम आपके लिए अच्छा होने वाला है। सो जस्ट try and find out some time to just look what you have been doing and what you need to do. इसके बीच का जो गैप है उसको फिल कीजिए एंड या गो हैड टाइम। एक्वेरियस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
ज़रूरत है इन द सेंस कि ये टाइम शायद आपको पुल करेगा कि आप रिलीजियसली थोड़ा सा स्ट्रांग हो, भगवान पे थोड़ा ध्यान लगाएं, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पे थोड़ा ध्यान लगाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रस्ट मी 2023 इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ नाइस रिजल्ट्स। ऑल्सो पिंक मून माइट फोर्स यू to do something like walking an extra mile, maybe doing something that is extended, or else you'll be just going back to basics and finishing the unfinished projects that you have in your life. So ऐसा हो सकता है कि आपको एक्सट्रीम सिचुएशंस आ जाए कि आपको लगे यार लेट्स जस्ट डू दिस, यार ये रिस्क ले लेते हैं, अब ये करके मानते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा बोले कि यार जो है पहले उसे ख़त्म करते हैं, देन विल थिंक अबाउट इट। तो दोनों केसेस में कहीं ना कहीं क्लैरिटी आ रही है। दैट इज़ वाई यू विल बी inclined to develop spiritually। ट्रैवल का मौका मिल सकता है, ट्रैवल कर सकते हैं आउट ऑफ योर सिटी, आउट ऑफ योर स्टेट, आउट ऑफ योर कंट्री। ट्रैवल तो ट्रैवल होता है भाई मेरे हिसाब से। सो ट्रैवल कैन बी समथिंग दैट माइट हेल्प यू टू गेट क्लैरिटी। सो ऑल द बेस्ट, कीप ट्रैवलिंग और जो काम पड़े हुए हैं उन्हें ख़त्म कर लो। सो द लास्ट वन इज स्पाइसेस, एंड स्पाइसेस के लिए दिस इज द टाइम ऑफ ट्रुथ। रिश्तों से रिलेटेड ट्रुथ का टाइम है। रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करूँ या तो अपने पार्टनर से बहुत क्लोज आ जाएंगे, कभी जुदा नहीं होंगे, या इस पीरियड ऑफ टाइम में इट्स टाइम टू क्विट, आप इस डिसीजन में पहुंच जाएंगे यार ये क्विट करना ही सही है। तो दोनों केसेस में क्लैरिटी आ रही है। ऑल्सो वेल्थ को लेके, यानी कि आपके पैसे, आपके फाइनेंसेस, आपके इन्वेस्टमेंट को लेके रीअसेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू एडवाइस यू ऑन दिस पिंक मून दैट आप उसको असेस कीजिए, देखिए पैसा वैसे कहाँ जा रहे हैं, ठीक से इन्वेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज इट्स अ गुड जॉब, लाइक इट्स लाइक अ गुड ईयर फॉर यू एंड इट्स गुड पिंक मून, बट क्लैरिटी आ रही है। Thank you so much for watching the whole video. I am sure you would have found your answers, and this is, अब देखिए ये जो मैंने आपको प्रिडिक्शन दी है, दिस इज फ्रॉम फुल मून टू अ वीक। अब यहाँ पे आप बोलोगे यार एक हफ्ते के लिए मतलब क्या जान के करना है, बट ट्रस्ट मी दिस 1 वीक इज गोइंग टू इफेक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ इन 2023। ठीक है, बहुत सारी राशियों में क्लैरिटी आ रही है, बहुत सारी राशियों में रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। So it's more about clarity, it's more about this pink moon is more about manifesting a lot of things in your life। कोई भी चीज़ का वेट कर रहे हो, सोचो कंप्लीट हो जाए, मिल जाए, है ना, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो बट नहीं हो रहा है, तो पिंक मून इज़ द राइट टाइम टू मैनिफेस्ट। पूरा हफ्ता होता है। वैसे अगर बात करें तो आप ऑन द पिंक मून डे आप मैनिफेस्टेशन की रिचुअल्स कर सकते हैं, जो भी आप फॉलो करते हैं। अगर आप कोई नहीं फॉलो करते हैं, कमेंट डाउन बिलो, आई विल टॉक अबाउट इट। एंड पूरा हफ्ता है आपके पास पूरा हफ्ता है, वो रिचुअल्स करने के लिए आप आराम से कीजिए। दैट्स नॉट समथिंग वेरी रॉकेट साइंस की यार, मतलब अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे काम कीजिए बेसिकली। ऑल्सो थैंक यू सो मच। सो हेयर आई एम विथ माई फर्स्ट यूट्यूब ब्लॉग, एंड I don't know how is it going to be, but I'm going to talk about हनुमान जयंती next because और हनुमान जी के बारे में थोड़े से फैक्ट्स पे बात करेंगे। और हनुमान जयंती में आप क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे आपके सारे कष्ट और सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, सब कुछ अचीव हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। लेट्स टॉक अबाउट इट in the next video. If you like the video, सबको thank you कि return में you can always like the video, and that's it from my side। सब्सक्राइब करना है, it's your choice, नहीं करना है it's your choice, but हाँ जब it's always an energy exchange। अगर if you literally related to your sun sign, then you can always send it, like just like the video and leave it there, and I'll be coming with my next video. Thank you so much.